Imagine yourself in middle of Atlantic Ocean. The nearest land is hundreds of miles away, if not thousands. No coast guard, no vessel. You put your AIS off. क्या आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा? Because someone who is thousands of miles away knows exactly where you are, even when you put your AIS off. And that is not a spy of maritime world. That is the tracker of maritime world, and we call it LRIT, Long Range Identification and Tracking. So hello and welcome. I am Captain Umang. You're watching me on Nav Insider. Let us start with topic of the day, LRIT, Long Range Identification and Tracking. बहुत easy language में आपको समझाऊंगा. I'll make you ready so that you can write your answers in your exams. You can give your answers in the orals and आप जब शिप पे सेल करो तो LRIT का इंपॉर्टेंस समझ सको. So let's not waste any time. Let's begin with the video. सो व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रहा था, प्लानिंग में था, इट वाज इन द पाइपलाइन. अर्ली 2000 समथिंग हैपन एंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट ने एक चेन रिएक्शन ट्रिगर किया, बिकॉज ऑफ विच वी हैव समथिंग नोन एज ISPS कोड. ईयर 2000 येमन में USS कोल नाम का जो यूएस नेवी का शिप था, इस पे बॉम्बिंग हुआ, एक छोटा बोट इसके साइड में आया एंड इट डेटोनेटेड इटसेल्फ. वी विल डिस्कस ऑल दिस केस स्टडीज इन डिटेल व्हेन वी डू ISPS कोड. 2001 9/11 अटैक्स, एवरीवन नोज, ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. 2002 अ फ्रेंच टैंकर नोन एज लिम्बर्ग, जिसका नाम लिम्बर्ग था, इस पे भी टेररिस्ट अटैक हुआ था. दिस वाज बॉम्ब एंड बिकॉज ऑफ दिस IMO realized the importance of maritime security. It shook the whole world. Now after shaking the whole world, what did they come to know? Especially when 9/11 attack happened, they said they have used aeroplanes as weapon. So what if someone uses ships as weapon? लेकिन एक बात बताइए, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके कंट्री में कौन सा शिप आ रहा है, आप उसके लिए रेडी कैसे रहोगे? So they said that first we need to identify the ship even before she is about to arrive. उसके आने से पहले हमें पता होना चाहिए ताकि हम उस पे एक्शन ले सके. And that is where the birth of LRIT comes into picture, Long Range Identification and Tracking. इसका नाम ही है Long Range and that is where the topic of the day begins. So lots of discussions happen in IMO. वो लोग सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कोई शिप हमारे कोस्ट की तरफ आ रहा है. And making rules is not that easy because it has to be followed by every country. तो इसमें टाइम लगता है. After series of discussion, IMO finally passes a resolution MSC 202 of 81st session. इसको ऐसे पढ़ा जाता है, जो ब्रैकेट में नंबर होता है, that is the number of session. So 81st session का resolution है number 202 in year 2006. Now all this resolution what I quote in my video, I'll put a link to download them in the description so that आप वो ओपन करके पढ़ सकते हो. ऑलवेज रीड फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज. नाउ इट मेक्स LRIT कंपल्सरी फ्रॉम 1st July 2009 फॉर SOLAS शिप्स, विच मीन्स शिप्स विच आर कंप्लाइंग विद SOLAS, उनके लिए कंपल्सरी हो गया. All passenger ships it is compulsory. Cargo ships which are greater than equal to 300 gross tonnage it is compulsory, which are on international voyages. And mobile offshore drilling units के लिए भी ये compulsory है. Now तो किसके लिए compulsory नहीं है? Which are the ships exempted from following the requirements of LRIT? सबसे पहले आता है warships. No requirement applies to them. No SOLAS requirement applies to them. Very few requirements apply to warships. Second, government ships which are used for non-commercial purposes. अगर government का कोई शिप है, जैसे कोस्ट गार्ड है या ऐसे, विच आर नॉट यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेज, उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड है. नाउ हियर कम्स द ट्रिक. व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट LRIT में एग्जेम्प्टेड कौन है, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इफ अ शिप इज सेलिंग ओनली इन एरिया A1, ध्यान से सुनना, इफ द शिप इज सेलिंग ओनली इन एरिया A1 विच हैज AIS, ऑपरेशनल AIS, they are also exempted from complying with LRIT. उनको भी LRIT की जरूरत नहीं है. So in your exam lot of time oral question comes, which are the ships exempted? Generally people forget this. So जो भी शिप है एरिया A1 में सेल कर रही है, which already has an operational AIS, they don't have to follow the requirements of LRIT. So AIS is like your social media. चिल्ला चिल्ला के जोर से सबको स्कीम बता देगा, मेरे पास इतना ड्राफ्ट है, इतने क्रू है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट LRIT is like your secret WhatsApp message to the government, end to end encrypted. सिर्फ आप ट्रांसमिट करोगे और सिर्फ वही पढ़ पाएंगे. सो LRIT इज अ सैटेलाइट बेस्ड ग्लोबल ट्रैकिंग सिस्टम. ये आपका जो शिप पे सैटेलाइट इक्विपमेंट है उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड रहता है. सो इसमें जो है 5 लेयर्स आते हैं. देयर आर 5 लेयर्स टू इट. सबसे पहला लेयर है शिपबोर्न इक्विपमेंट, यानी आपके शिप पे जो इक्विपमेंट है सैटेलाइट का, चाहे वो इनमारसैट सी हो चाहे इरिडियम हो, ये इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड रहता है, सो दैट इट सेंड्स ऑटोमेटिकली. सेकंड कम्स कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर. थिंक ऑफ इट इज लाइक अ कुरियर सर्विस. ये क्या करता है, सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. ब्लू डार्ट है या आपके जो भी कुरियर है, प्रोफेशनल कुरियर सर्विस, इनकी तरह ये कुरियर सर्विस है. ये बस मैसेज आपके शिप से उठाएगा और आगे देगा ASP को. ASP यू कैन अंडरस्टैंड इट इज लाइक एन एनहेंसर. आपका जो है
मैसेज आएगा उसको थोड़ा एनहांस करके और आगे भेजेगा. देन कम्स डेटा सेंटर. डेटा सेंटर कैन बी ऑफ 3 टाइप, नेशनल, रीजनल, कोऑपरेटिव, एंड देन फाइनली द डेटा गोज टू इंटरनेशनल LRIT डेटा एक्सचेंज IDE. यहाँ पर जो है इंटरनेशनली स्टोर किए जाते हैं. इन पांचों को कंट्रोल में रखता है, ओवरऑल कोऑर्डिनेट करता है, पूरे सिस्टम को जिंदा रखता है LRIT कोऑर्डिनेटर. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस in detail in addition to DDP, which is data distribution plan made by IMO. So we will be discussing all of them in detail and I'll give you a lot of insights about LRIT. Now, जैसा मैंने आपको बताया था, the birth of LRIT was via IMO resolution MSC 202 of 81st session in the year 2006. What they did, they made a new regulation in SOLAS chapter 5. SOLAS chapter 5 which is safety of navigation. उसमें एक नया regulation बना 19-1 to include LRIT and 19-1 is fully dedicated to LRIT. Now ये जो डेटा है, हमने अभी LRIT का स्ट्रक्चर देखा. ये जो LRIT का डेटा है, ये कौन कौन एक्सेस कर सकता है, यानी किस किस को ये डेटा मिल सकता है. तो सबसे पहले आपका फ्लैग स्टेट, इनके पास हमेशा एक्सेस रहेगा अपने सारे शिप्स का. तो फ्लैग स्टेट हैज ऑलवेज एक्सेस टू योर डेटा बिकॉज आपका शिप जहां भी रजिस्टर्ड है, व्हाटएवर इज योर फ्लैग स्टेट, दे कैन ऑलवेज एक्सेस. सेकंड इज पोर्ट स्टेट. सपोज इफ यू आर लोकेटेड इन USA, नाउ योर नेक्स्ट पोर्ट इज मुंबई. सो मोमेंट यू डिक्लेयर दैट यू हैव एन इंटेंशन ऑफ कमिंग टू मुंबई, इफ यू आर विदिन द 1000 nautical miles, if you are within the 1000 nautical mile, the DG shipping can access your data, which means Indian flag state can access your data provided you are in 1000 nautical mile. So दो चीज है, इंटेंशन होना चाहिए एंड सेकेंडली जो है आपका डिस्टेंस होना चाहिए. सो ऐसा नहीं है कि आप USA से हो तो अभी से एक्सेस करना शुरू कर दोगे, दैट इज नॉट अलाउड. आपका जो कोस्टल स्टेट है, सपोज आप पास कर रहे हो, इंडिया पास कर रहे हो, यू आर नॉट विलिंग टू कॉल इंडिया. सपोज यू आर अ सिंगापुर रजिस्टर्ड वेसल, you loaded in Singapore, you want to discharge in Gulf, just for example. Now you're passing India, but you are within 1000 nautical miles, still India can see your data. So coastal state also can see your data even though you are not calling at that port. And last but not the least, search and rescue authorities, in emergency they can access your data. Now here is the catch, who has access to data में generally लोग ये तो बोलते हैं कि port state 1000 mile, coastal state 1000 mile, but they forget the most important part. While the location can be anything, remember location should not be, your vessel should not be located towards the landward of baseline of some other country. इसका मतलब क्या है? Suppose if you are calling Hazira port, you have entered the river and you are inside the river, which means हमारा जो इंडिया का बेस लाइन है उसके अंदर हो आप, बेस लाइन के लैंडवर्ड साइड पे, you are inside the river. Similar example I can give is of Mississippi. Suppose आप Mississippi river में हो, you are inside the baseline. Now coastal state or port state cannot access data. Suppose you are in Mississippi river, आपका next port है Canada, which is less than 1000 mile. You make your intention clear. You send the ISPS form to Canadian authority that my next port is Canada, my ETA is so and so. But you are located towards the landward of their baseline. Can Canada access your data? Answer is no. Why answer is no? It is because of security reason. If the vessel is towards the landward of baseline, they feel that they should not be revealing their location, and that is why coastal state and port state में याद रखना within 1000 miles okay. Port state में intention also has to be there. You have to send the pre-arrival notification. So once you send pre-arrival notification, once you are in 1000 nautical mile, they can access your data. Coastal state, if you are in 1000 nautical mile, not calling their port, no problem. They can access your data provided you are not located landwards of baseline of any other country. Very very important. So LRIT में कौन सा डेटा जाता है? Only 3 things goes. First is IMO number. It is like your Aadhaar card. आप जितनी भी बार चाहे नाम चेंज करो, Aadhaar number is going to remain the same. Similarly is IMO number. No matter how many times you change the name of the ship, IMO number is going to remain the same. Second is GNSS position. Now please note, I have written GNSS, I have not written GPS. GPS is just one system which falls under GNSS. GNSS has many systems like Navig of India, Beidou of China, Galileo of Europe. So make sure that your terminologies are correct, especially in your oral examination. And third is date and time stamp, that what time and what date was this data sent. Now ये data जो है हर 6 घंटे में अपने आप जाता है without human intervention. Okay, but if required the frequency can be increased to every 15 minutes. यानी automatic position report की जगह on demand position report हो सकती है, and that is called as LRIT polling. This is also one of the very famous oral question. So I hope you have understood this. चलिए समझते हैं 5 layers of LRIT. काफी easy है. सबसे पहले आता है, सबसे फर्स्ट लेयर
वगैरह शिपबोर्न इक्विपमेंट ये जनरली सैटेलाइट बेस्ड होते हैं, इनमारसैट सी, थुराया, इरिडियम, कोई भी सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। दिस शिपबोर्न इक्विपमेंट हैज टू कंप्लाई विद IMO परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। वी विल बी डिस्कसिंग दिस IMO परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड द रिवाइज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। ये जो आपका शिप का इक्विपमेंट है, इट शुड बी केपेबल ऑफ ऑटोमेटिक पोजीशन रिपोर्ट, जो हर 6 घंटे में अपने आप बिना किसी के इंटरवेंशन के जो पोजीशन रिपोर्ट भेजते हैं, इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें ऑन डिमांड पोलिंग होना चाहिए। ऑन डिमांड पोलिंग मतलब जो 15 मिनट्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं उसको कहा जाता है LRIT पोलिंग। सो इट शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ऑन डिमांड पोलिंग एंड इसमें पोल ओवरराइड का भी फंक्शन होना चाहिए। पोल ओवरराइड मतलब एक पुराना जो आपने पोल करके रखा है उसको कैंसिल करके वापस नया पोल करो, दैट इज कॉल्ड एज पोल ओवरराइड। सो दिस इज शिपबोर्न इक्विपमेंट। बात करते हैं लेयर नंबर 2 विच इज कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है ये आपका जो बस कुरियर सर्विस है, डेटा शिप से लेगा और आगे ASP यानी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर को देगा। सो इट डज नथिंग बट ट्रांसमिट्स डेटा फ्रॉम शिप टू ASP। ये कैसा होना चाहिए? द कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर शुड बी सिक्योर्ड, इट शुड बी रिलायबल एंड शुड बी एबल टू ट्रांसमिट नियर रियल टाइम। रियल टाइम नहीं बोला है, नियर रियल टाइम। ऐसा नहीं है कि आप शिप का जो डेटा है वो 10 घंटे बाद ट्रांसमिट कर रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। इट शुड बी नियर रियल टाइम। मोमेंट द CSP हैज द डेटा, इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट इट टू ASP। इंडिया के लिए ये काम कौन कर रहा है? इंडिया के लिए काम करता है टाटा कम्युनिकेशन। बहुत बार ये एग्जाम में ओरल में पूछा जाता है, हु इज द CSP फॉर इंडिया? द CSP फॉर इंडिया इज टाटा कम्युनिकेशन। नाउ आपके मन में एक डाउट आता होगा कि शिप का जो डेटा है वो ASP को पहुंचे उससे पहले CSP के पास जा रहा है, तो क्या CSP ये डेटा देख सकता है? द आंसर इज नो। शिप का जो इक्विपमेंट है वो उसको एनक्रिप्ट करके भेजेगा, यानी कि एनवेलप जो है वो सील करके कुरियर वाले को दिया जाता है। कुरियर वाले को नहीं पता कि अंदर क्या लिखा हुआ है या क्या डेटा है या पार्सल में क्या है। सेम एनालॉजी यहाँ पे, जो शिप का इक्विपमेंट है उसको एनक्रिप्ट करेगा, आगे डिक्रिप्ट करने वाला ASP है और ASP उसको फिर से एक अलग फॉर्मेट में एनक्रिप्ट करके आगे भेजेगा डेटा सेंटर में, विच वी विल सी नाउ। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, इवन द CSP does not have access to your data. It is like end-to-end encryption आपके WhatsApp की तरह। Next we go to ASP which is application service provider. Think of this as an enhancer. आपका जो डेटा है पहले तो उसको डिक्रिप्ट करेगा जो आपके शिप ने भेजा है, एंड नाउ इट इज गोइंग टू प्रोसेस एंड फॉर्मेट द डेटा। ये उस डेटा को प्रोसेस करेगा, फॉर्मेट करेगा, इसको IMO ट्रांसमिशन फॉर्मेट में लेके आएगा। IMO के अपने स्टैंडर्ड्स है, IMO ट्रांसमिशन फॉर्मेट। इसके कंप्लायंस में आपका डेटा लेके आएगा जो IMO ने डिसाइड किया है, उस हिसाब से आपका डेटा जो है फॉर्मेट होगा। इट वर्क्स वेरी क्लोजली विथ योर डेटा सेंटर्स। आपके जो डेटा सेंटर्स है इसके साथ बहुत क्लोजली काम करता है। इनफैक्ट कितने सारे कंट्रीज में खुद ASP ही डेटा सेंटर पूरा चलाते हैं। दे आर द वन हु आर रनिंग द डेटा सेंटर, इट इज लाइक गिविंग टू अ थर्ड पार्टी। इसके एग्जांपल है फल्क्रम मैरीटाइम, पोलस्टार स्पेस एप्लीकेशन, CLS, ट्रांजास, काफी सारे अलग अलग ASP है। तो ये ASP क्या करता है? आपका जो शिप का डेटा है सबसे पहले जैसे मैंने बताया उसको डिक्रिप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, फॉर्मेट करेगा, इसको IMO के फॉर्मेट में लेके आएगा, एंड नाउ इट इज गोइंग टू पुट इट्स ओन स्टैम्प। ये अपना स्टैम्प भी उसमें डालेगा कि कौन से ASP ने ये डेटा आगे ट्रांसमिट किया है। बात करते हैं फोर्थ लेयर विच इज डेटा सेंटर। इसका काम है डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है डेटा सेंटर का वो है नेशनल, यानी एक कंट्री अपना डेटा सेंटर खुद ओन करता है, जैसे इंडिया है, USA है, जापान है, इनके पास अपने डेटा सेंटर है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अगेन एन ओरल क्वेश्चन, LRIT डेटा सेंटर कौन सा है? सो आंसर इज DG कॉम सेंटर। प्लीज रिमेंबर दिस। फॉर इंडिया हु इज द LRIT डेटा सेंटर? इट इज DG कॉम सेंटर, डोंट फॉरगेट दिस। सेकंड आता है रीजनल, यानी एक पूरा रीजन मिलके जो है डेटा सेंटर चलाता है। फॉर एग्जांपल EMSA जो है एक डेटा सेंटर चलाता है, यूरोपियन मैरीटाइम सेफ्टी एजेंसी जो है वो यूरोप का डेटा सेंटर चलाता है। उसमें कुछ कंट्रीज का एक्सेप्शन है, यू कैन रीड अबाउट इट लेटर ऑन। थर्ड आता है कोऑपरेटिव डेटा सेंटर। नाउ इफ यू आस्क मी, रीजनल एंड कोऑपरेटिव सेम होता है। कोऑपरेटिव में हैव 2 कंट्रीज विच आर फार अवे बट स्टिल शेयरिंग द सेम डेटा सेंटर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। रीजनल में एक पूरा रीजन होगा, कोऑपरेटिव में मे बी एक कंट्री वेस्ट में हो, एक कंट्री ईस्ट में हो। कोऑपरेटिव डेटा सेंटर का एक एग्जांपल है एंटीगुआ, बारबुडा और सेंट किट्स एंड नेविस, ये दोनों मिलके एक डेटा सेंटर चलाते हैं। व्हाई दे डू दिस? बिकॉज दे आर स्मॉल कंट्रीज, दे कैन नॉट अफोर्ड सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आपस में मिलके एक डेटा सेंटर चलाते हैं। सो दिस इज योर फोर्थ लेयर। सारे ही डेटा सेंटर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो है वो मिनिमम 12 मंथ के लिए स्टोर करे। हालांकि नेशनल लॉज उसके लिए और ज्यादा टाइम फ्रेम मांगते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग द डेटा इज एटलीस्ट 12 months. Now let's go to the fifth layer, which is International Data Exchange or LRIT International Data Exchange. Think of it like a international post office or international traffic police. ये क्या करते हैं? सारे queries को route करते हैं। Whenever let's say कि इंडिया के कोस्ट के 70 nautical miles एक पनामा registered vessel जा रहा है। Now India wants to see the data for that vessel. What is India going to do? India going to send
a request. It is going to send a polling request. Now when you send a polling request, it goes first to International Data Exchange. International Data Exchange क्या करेगा? सबसे पहले verify करेगा, is this an authorized person asking for the data? If you are not authorized, it will not give you data. अब ये authorized है या नहीं है, वो vessel 1000 nautical mile के range में है या नहीं है, that information comes because of DDP, Data Distribution Plan. IMO का Data Distribution Plan है, इसमें हर एक कंट्री ने अपना एरिया बताया कि मेरे अंडर इतना एरिया आता है, 1000 nautical mile is so and so, so and so. I am the one who is representing India, I am the one who is representing other countries. And Data Distribution Plan जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इट इज गोइंग, जो इंटरनेशनल डेटा एक्सचेंज क्या करता है, इस प्लान को रेफर करता है. इफ दिस प्लान सेज ओके, डीजी शिपिंग इज ऑथोराइज्ड टू सी द डेटा, ओनली देन वेसल्स डेटा विल बी सेंट टू डीजी शिपिंग. सो ये सारा काम कौन करता है, ये पूरा ट्रैफिक कौन मैनेज करता है, आईडीई, इंटरनेशनल डेटा एक्सचेंज. इसको कौन ऑपरेट करता है, ऑल्दो इट कम्स अंडर आईएमओ, इट इज ऑपरेटेड बाय यूएस कॉमसेट. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट अस डिस्कस अबाउट एलआरआईटी कोऑर्डिनेटर. एलआरआईटी कोऑर्डिनेटर एज द नेम सजेस्ट, ये ओवरऑल सब कुछ देखता है. इसका काम है कि पूरा एलआरआईटी जो है सिस्टम जो है वो स्मूथली फंक्शन करे, उसमें कोई ग्लिच ना आए, कोई रुकावट ना आए. नाउ दिस इज प्रेजेंटली ऑपरेटेड बाय आईएमएसओ, व्हिच इज इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन. इट एक्ट्स लाइक एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. अभी जो मैंने आपको पांचों लेयर बनाए, इन पांचों लेयर के जो ऑडिट है ये आईएमएसओ के अंडर आते हैं एंड दे रिपोर्ट टू आईएमओ. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेशन कीपिंग द होल सिस्टम अलाइव इज विद आईएमएसओ, व्हिच इज इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन. अब बात करते हैं आईएमओ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सो एलआरआईटी के लिए दो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, एमएससी 210 ऑफ 81st सेशन, which were initial performance standard, which have now been superseded by MSC 263 of 84th session. This was in year 2006, this was in year 2008. पहले समझते हैं ओरिजिनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को, फिर हम देखेंगे कि उसको रिवाइज किया गया है. तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में काफी सारी चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सबसे पहले डेटा ट्रांसमिटेड, यू ऑलरेडी नो, तीन चीजें ट्रांसमिट होती है, आईएमओ नंबर ऑफ द शिप, आपका जीएनएसएस पोजीशन क्या है, एंड डेट एंड टाइम स्टैम्प. सेकंड है इंटरवल्स, यू ऑलरेडी नो 6 आवर्स का इंटरवल है. इट शुड हैव कैपेबिलिटी ऑफ पोलिंग विच इज 15 मिनट्स. इसमें पोल ओवरराइड होना चाहिए, वो सब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है. बिना किसी इंटरवेंशन के, इवन इफ द शिप इज अनअटेंडेड, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तभी भी ये डेटा जो है ट्रांसमिट होना चाहिए. ये पूरा सिस्टम जो है ये टेम्पर प्रूफ होना चाहिए. इसमें कोई भी तरह का अनऑथराइज्ड यूसेज या एक्सेस नहीं होना चाहिए. एनक्रिप्शन होना चाहिए एज पर आईएमओ ट्रांसमिशन फॉर्मेट, ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया है. एंड कौन डेटा एक्सेस कर पाएगा, हु हैज द अल्टीमेट एक्सेस ऑफ द डेटा, यू ऑलरेडी नो, फ्लैग स्टेट, कोस्टल स्टेट, पोर्ट स्टेट एंड सर्च एंड रेस्क्यू अथॉरिटीज इन केसेस ऑफ इमरजेंसी. जब ऑलरेडी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड था तो ये नया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लाने की जरूरत क्या थी? नया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लेने की जरूरत थी क्योंकि ओरिजिनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सिर्फ शिप पे फोकस कर रहा था, शिप और शिपबोर्न इक्विपमेंट पे फोकस कर रहा था. नाउ दिस न्यू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज अ ग्लोबल फोकस, ये पूरे सिस्टम पे फोकस कर रहा है. पुराने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में टेस्टिंग का प्रोसीजर नहीं था, जो नए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में टेस्टिंग का प्रोसीजर था. इसमें डायनेमिक पोलिंग, डायनेमिक रिपोर्टिंग का भी ऑप्शन आ गया. पहले डायनेमिक रिपोर्टिंग का ऑप्शन नहीं था. पुराने जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड था इसमें सिर्फ शिप के लिए ज्यादातर रिक्वायरमेंट थी. नाउ दे हैव रिक्वायरमेंट फॉर डेटा सेंटर. द की टेकअवे इज डेटा सेंटर शुड स्टोर द डेटा फॉर एटलीस्ट 12 months. सो दिस वॉज LRIT. अब बात करते हैं AIS और LRIT के डिफरेंसेस की. तो AIS जो है वो VHF रेंज पे काम करता है. द रेंज इज अराउंड 30 to 50 nautical miles. LRIT जो है वो ग्लोबल सिस्टम है. AIS इज लाइक पब्लिकली विजिबल, LRIT का डेटा इज ओनली विजिबल टू दी ऑथोरिटीज. AIS जो है वो अनसिक्योर्ड है, AIS को बंद किया जा सकता है. LRIT यू कैन नॉट स्विच ऑफ. टेक्निकली कैन यू स्विच ऑफ LRIT? टेक्निकली येस, मॉरली नो, एथिकली नो, एंड लीगली सोचना भी मत, बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ फ्लैग स्टेट एंड पोर्ट स्टेट इन्वेस्टिगेशंस. अगर आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, if there is a malfunction, then you are supposed to report it to IMO. You are supposed to report it to data center, who will then report it to IMO ultimately, and you have to get your equipment repaired. AIS जो है वो एक secured way नहीं माना जाता है. AIS can be turned off, as I said. LRIT you cannot turn it off. AIS का पर्पज है आपको नेविगेशन में एड करना. It helps in identifying the other vessels around you, and it also transmits your identity to other vessels around you. Whereas LRIT जो है वो long range है, AIS शॉर्ट रेंज है. एंड LRIT का पर्पज है आपकी पोजीशन रिपोर्ट करना. AIS का कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होता है. LRIT ट्रांसमिट्स एवरी 6 hours और द फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज टू 15 minutes बाय पोलिंग द LRIT डिवाइस. सो दिस वाज LRIT. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, comment down if you have any other suggestion. If you want me to make video on any other topic, your suggestions are most welcome. This is Captain Umang. Thank you for watching me on Nav Insider. Till next time, stay safe, sail smart.